أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ كيف وبرکاتہ۔ حالكن يا أخوات؟ الحمد الحمد للہ، الحمد للہ، بڑے دنوں بعد آج ہم ملے۔ نحن بالخیر۔ الحمد للہ الحمد للہ۔ ہماری ایک کلاس جن کی چھٹی میں نے دی تھی، نیکسٹ میں پھر ذرا میں بھی بزی ہو گئی تھی اور حفصہ بھی بزی تھی، اور ہوا یہ کہ بالکل بھول گئے کہ آپ لوگوں کو بتانا بھی تھا نا، تو اس کے لیے بڑی معذرت۔ میں نے گروپ میں بھی ایک میسج ڈالا تھا، تو بندہ بشر ہے، چھوٹی موٹی کوتاہیاں غلطیاں، یہ ہماری انسان ہونے کے ناطے فطری ہے نا یہ سب کچھ۔ تو آج کی کلاس انشاءاللہ ہم اپنی کرتے ہیں شروع۔ تجوید ہمارا مین مقصد ہے کہ قرآن مجید کو بہترین طریقے سے پڑھنا کیسے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ یہ آگے بڑھتے ہوئے ہم تک پہنچی۔ اب مقصد کیا ہے کہ ایک ایک حرف قرآن مجید کا لفظ بھی نہیں، ایک ایک حرف بہت اچھے طریقے سے ادا کریں، تاکہ نہ تو معنی بگڑیں اور نہ ہی بدلیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم کر جاتے ہیں اور جو کیوسیز ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو ہمیں مزید فائدہ ہوا ہے۔ جیسے عبدنا، اب یہ ہوگا کہ ہم نے عبادت کی، عبادہ، جیسے عبد کہتے ہیں نا بندے کو، عبادہ، اور اس کے بعد نا ہمارا بندہ، تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ان سے معنی بدل جاتے ہیں یا پھر بگڑ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے ایک ایک حرف کا حق ادا کریں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا جی، آپ کی ٹیچرز ہیں نورین اکرم اور حفصہ سہیل۔ ویسے 2-3 کلاسز مجھے لگتا ہے میں نے ہی لے لی ہیں، آ جائیں گی حفصہ بھی، بس تھوڑی سی بزی ہیں، تو انشاءاللہ پھر اسی طرح سے ہم اپنی جیسے ریگولر کلاس کرتے، ایک کلاس حفصہ لیا کریں گی اور ایک کلاس میں لیا کروں گی۔ اچھا جی، ہم نے جو پڑھ لیا ہے اسے بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ہم نے اپلائی کرتے ہوئے آگے جانا ہے۔ جیسے ہم نے مخارج پڑھ لیے، آپ اس کو ایسے فنگر ٹپس پہ یاد رکھا کریں کہ 5 ہیں: الخیشوم، الجوف، الحلق، الشفتان اور اللسان، تاکہ یہ بہت ہی اچھی طرح سے ہمیں یاد ہو جائیں اور یاد آ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ جہاں ہم نے اپلائی کرنا ہمیں سوچنا پڑے کہ ان کے مخارج کون سے ہیں۔ مخرج کے لیے ہم نے بہترین جو طریقہ سیکھا ہوا وہ ہے کہ کسی بھی حرف کا جب مخرج معلوم کرنا ہو تو اس لفظ، اس حرف کو ساکن کر دیجئے یا مشدد کر دیجئے، اس سے پہلے ایک حمزہ فتحہ کے ساتھ لگائیے اور پراپر طریقے سے حرف کو آئینے کے سامنے ادا کر کے دیکھیے۔ اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو اپنی غلطی پتہ چل جائے گی۔ جیسے اب اللسان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہونٹوں کا کوئی کام نہیں ہے، آپ ان الفاظ کو، یہ جو حروف ہیں ان میں، یہ جن الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں ان الفاظ کو بول کے دیکھا کریں کہ کہیں میرے ہونٹ آگے تو نہیں آ رہے یا پھیل تو نہیں رہے۔ جو شفتان والے ہیں، آپ پراپر طریقے سے با، ما اور فا کو ادا کرتے وقت غور کریں کہیں آپ نے واو کی طرح اپنے ہونٹ راؤنڈ تو نہیں کر لیے، اور واو ادا کرتے وقت دیکھا کریں کہیں آپ کے ہونٹ سیدھے تو نہیں ہیں۔ الحلق میں حلق سے آواز نکالنی ہے نا، تو اس کی بھی بڑی اچھی سی پریکٹس چاہیے۔ مدیہ میں کس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے؟ ایک تو 2 کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ناک میں لے جانے والی آواز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ جو حروف پتلے ہوں گے، جیسے یہ الف کے ساتھ ہے، یہ ان 2 کے ساتھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
अलिफ जिस जिस भी लफ्ज के साथ लग, जिस हर्फ के साथ लग जाए, हर्फ पतला होगा तो जब हम ये टू काउंट की मद बनाएंगे तो उसको हम अलिफ को पतला पढ़ेंगे। अगर पीछे मोटा हर्फ लगा दिया, जैसे दौद लगा दिया, तो दो, क्योंकि दो और अलिफ हम इसको अलग नहीं कर सकते। इसी तरह से हम कहते हैं कि नून और मीम साकिन हो या मुशद्दद हो, दोनों में अलर्ट हो जाएं। इसका मतलब है कि इसके बाद कोई कायदा, कोई रूल अप्लाई होने वाला है। अभी फिलहाल हम अपने नून के कवायद कर रहे हैं, ये कंप्लीट करेंगे फिर हम मीम पर आ जाएंगे। मीम के थोड़े हैं लेकिन ये कि ज़रूरी हैं। अच्छा जी, ये तो अब हमें बिल्कुल रट जाना चाहिए, और रटने के साथ साथ ये कि हमें अप्लाई करना आना चाहिए। जब भी हम इन छः के छः हरूफ में से कोई देखें, फौरन याद आए कि ये जो मखरज आम है, अल हलक है। ठीक है, जैसे अचानक से पूछ लिया जाए आपसे आइन का मखरज बताएं, तो आप कहें मखरजुल आम जो है वो अल हलक है, लेकिन इसका जो मखरज खासा है वो वसतुल हलक है। ठीक है, ये मिडल ऑफ द थ्रोट से अदा होता है। इस तरह से हमें ये पक्के हो जाएंगे मखारिज। इसके बाद हमने अल लिसान के कहा था कि 10 मखारिज हैं और उनमें से फिर 18 हरूफ अदा होते हैं। इसी एक, ये जो आपके पास स्लाइड आती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद ये कि इसे लगा लें अपनी वॉल पर, या फिर खुद अपने हाथ से बना लें ये वाली सारी ड्राइंग। फायदा ये हो जाएगा, जितनी दफा बनाते जाएंगे लिखते जाएंगे, ये बहुत अच्छा सा याद होता जाएगा। इसके साथ हमने सीखे थे अपने दांतों के नाम। ठीक है, बस हमने ये याद रख लेना है एक साइड। अब ये सिर्फ इसमें क्या, ये जो एक छोटा सा फर्क है, ये है सनाया उलिया है और ये है सुफला। असफल साफिलीन से सुफला याद रखा करें। सुबहाना रब्बी अल आला से आला याद रखें। ठीक है, ये ऊपर के और नीचे के क्या हैं, ये सनाया है। ठीक है, असनाया। बाकी सारे नाम आपने जो अपने राइट पर पढ़ना है वही लेफ्ट पर ले जाना है। जो आपने अप पढ़ा वही आपने डाउन में पढ़ लेना है। ठीक है, तो एक साइड याद करनी है, तीन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। असनाया, अर्रुबायात, अल अनियाब, अदवाहिक। और तवाहिन पर आके एक तवाहिन पे नहीं गुजारा करना कि एक ही दफ़ा कह दें कि ये 3 तवाहिन है, नहीं। बोले तवाहिन तवाहिन तवाहिन, उसके बाद नवाजिज। ये सबसे आसान तरीन तरीका है दांतों के नाम याद करने और याद रखने का। ठीक है, इसमें आपको ये फायदा होगा कि जब आप मखारिज में पहुंचेंगे बताएंगे। इसी तरह से ये जो हम अपने आजकल कर रहे हैं ना नून साकिन के अहकाम, उसमें भी हमें ये चीज़ फायदा देती है। हमें दांतों के नाम आते हो, जुबान के बारे में पता हो, होंठों के बारे में पता हो, तो मजीद अहकाम सीखने भी आसान हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ हम ये आपको छोटा सा एक चार्ट दिखा देते हैं कि जो अल्फाज हैं उनके साथ उनके अलकाब या निस्बतें लिखी हैं। ठीक है, ये सजरिया नहीं है, शजरिया है। ठीक है, शजरिया। शजरिया, लहविया, हलकिया, असलिया, नकोया, लसविया, जलकिया, शफविया, अलहवाया। ये मिलते जुलते ही हैं, जैसे शफ्तान से शफवी निकल गया, हवा पर ख़त्म होते हैं हरूफुल मद, हवाया हो गए। जलकिया फिसलने को कहते हैं, तो फिसल कर जुबान या आवाज़ कह लें आगे की तरफ आती है। ठीक है, इसमें से हमने कहा था लिस्विया में भी सा है, और इसी तरह से नौतोया में तो है। ठीक है, उस तरह से हम छोटी छोटी निशानियां लगाकर याद कर लेते। असलिया यानी कि बिल्कुल रास से, रास कहते सर को, चोटी जैसे कहते हैं रासुल जिबाल, पहाड़ों की चोटियां, इंसानी सर को भी रास कहते हैं। ठीक है, तो ये असलिया भी उसे बिल्कुल टॉप को कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमने ये जो सिटी वाले, ठीक है, सफीरिया याद रख लेने हैं। शजरिया का शीन और जीम दोनों आ जाते हैं इसमें, इसको इस तरह याद रख लें। ठीक है, और लहविया लिहात से अदा होते हैं, और हलकिया तो हमें अच्छे से याद हो ही जाते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिएगा नून का गुन्ना और मीम का गुन्ना। चूंकि ये जो नून है ये हमने कहा था अलिसान से अदा होता है। ठीक है, इसीलिए आप इन ये जो छोटी छोटी सी फोटोग्राफ्स होती हैं, ये जो इनके डायग्राम्स बनाई गई होती हैं, या फिर इनको हाईलाइट किया हुआ होता है, गौर से देखा करें। यहाँ पर इसको ब्लू करके बताया कि ये जुबान से अदा होना है।
बेशक गुन्ना करना है, लेकिन ये क्योंकि इसका मखरज लिसान है, तो यहाँ हम अपनी जुबान को इस्तेमाल करेंगे। जबकि मीम जो है ये शफविया है। ठीक है। शफविया से मतलब ये कि ये होंठों से अदा होने वाला हर्फ है। तो मीम का चाहे आपने गुन्ना करना है, चाहे जबर के साथ पढ़ना है, पेश के साथ पढ़ना है, या फिर आपने इसे जो हम अब अरबी में कहते हैं ना, उस तरह से भी इसको अब याद रखना है। कसरा दोमा फतहा, किसी भी तरह से पढ़ना है, साकिन पढ़ना है, मुशद्दद पढ़ना, आपने पढ़ना अपने होंठों से ही है। इसको आपने अपने जुबान से या हलक से नहीं जाके अदा करना, बल्कि बहुत आसानी से हमने सीखा कि इसको हम मीम आसानी से और नरमी से अदा करेंगे। माँ से इसको हमने रिलेट किया था, ये इस तरह से हम याद रखेंगे। अच्छा जी, नून साकिन उस नून को कहते हैं जो खाली होता है, ठीक है, जिस पर कोई हरकत नहीं होती। ठीक है। अब जैसे मिन देखा था, आन देखा था, फिर हमने मजीद एक छोटी सी आपसे कहा था कि इसी तरह की टेबल बना लें, इसी तरह का एक कॉलम बना लें, जिसमें आप लिखें अहकाम नून साकिन और तनवीन। क्योंकि तनवीन में भी जो अगर से खोलते हैं ना, तो उसी तरह से ये नून साकिन ही आ जाता है ना एंड पे। इसके आप लिखें कि चार अहकाम हैं: इजहार, इदगाम, इकलाब और इख्फा। ठीक है। इजहार हम कर चुके कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर इन छह हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए जिन्हें हरूफ हल्की कहा जाता है, तो वहाँ पर हम पूरा पूरा इजहार करेंगे नून का। इसके हमने अल्फाज की भी प्रैक्टिस की थी। और इसी तरह से हमने ये कहा था कि अब इसको आपने अपनी एक लिस्ट बना लें कि ये जो हुरूफ है नून साकिन के बाद आएंगे, तो हमने इजहार करना है। ये तीन हम याद करेंगे चीज़ें, चौथी हमें खुद ब खुद आ जाएगी। आज बारी है अल इदगाम की। अच्छा जी, इसमें बताया गया है कि ये जो इसमें ना इल्तिका हो जाता है, यानी कि हम इसको इस तरह से मिलाते हैं, इदखाल करते हैं, दाखिल करते हैं। यानी कि नून साकिन को अगले हर्फ में इस तरह से दाखिल करते हैं कि वो लफ्ज़ एक हो जाता है। अब इसमें हमने ना थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है कि कुछ जो होंगे गुन्ना के साथ होंगे और कुछ बग़ैर गुन्ना के। सबसे पहले तो इसका हम याद रख लेते हैं कि इसमें हरूफ कौन से आने। उन हरूफ का हम बना लेंगे यरमलून। ठीक है। पहले यरमलून बना लें ताकि याद रहे। अब ये है या, रॉ, मीम, लाम, वाओ और नून। यरमलून बन गया। अब इसमें हम लिख देंगे कि यहाँ पर हमने इदगाम करना है। ठीक है। इसके बाद एक और जो अहम चीज़ है कि ये इसकी आगे भी हमने दो किस्में बनानी है। जैसे, अच्छा जी, मैं एक खाली स्लाइड पे जाती हूँ। ये, ठीक है, ये देखिएगा, अहकाम, इदगाम। अच्छा जी, अब मुझे आप में से कोई बताए ये चार नाम जिसे याद हो गए हों। सच में बताऊं? जी जी, बताइए। इदगाम बिला गुन्ना के चार नाम। नहीं नहीं, ये जो नून साकिन और तनवीन के। इजहार, इजहार, इजहार। जी जी, इजहार नंबर बोलिए। एक, नंबर दो इदगाम, नंबर तीन इकलाब, नंबर चार इख्फा। इख्फा, ठीक हो गया। अच्छा जी, इजहार में तो हमें मजीद कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हमने लिख दिया कि हरूफे हल्की आ गए। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर इजहार हो जाएगा। अब इदगाम में ना छोटा सा एक और भी रौला आ जाता है। वो क्या है कि इसमें कुछ में यरमलून हमने इदगाम करना है बगुन्ना, और और बिला कुछ गुन्ना। करना है बगैर गुन्ना के। ठीक है। जी। यहाँ तक जहाँ तक इदगाम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप इसके साथ लिख लें यरमलून। ठीक है। बगुन्ना में लिख लें यौमिन। यौमिन, या ठीक है। वाउ मीम नून। ठीक है। और ये लाम और रॉ, मीम लिखने लगी थी, लाम डर। और रॉ। ठीक है। अब ये जो यौमिन आपने लिख लिया ना, अब ये है बागुन्ना। ठीक है।
अब यहाँ पर एक और आगे छोटा सा हमें बनाना पड़ेगा कॉलम। वो क्या होगा? उसमें ये होगा कि एक तो इदगाम होगा कामिल, ठीक है, और एक इदगाम हो जाएगा नाकिस, जिसमें नुक्स हो, ठीक है, जिसमें कुछ कमी हो। नुक्स हम उर्दू में किसी और चीज को कहते थे ना, अरबी में नाकिस कहते हैं उसको, जिसमें थोड़ी कमी हो, ठीक है, कुछ और मजीद इसमें ऐड ना हुआ हो, या ये पूरा पूरा मुकम्मल ना हुआ हो, ठीक है। इदगाम कामिल में अब हमारे आ जाएंगे मीम और नून, और नाकिस आ जाएंगे वाव और या। ठीक है, आप सब इसी तरह से लिखें अपने पास, फिर मुझे बताइए। चलें, आपको मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, इस तरह से आप लिख लें ताकि आगे जो हमने पढ़ना वो हमें समझ आ जाए। एमी एमी नहीं लिखना, सचमुच लिखें। और अभी आपके पास अगर पेंसिल कॉपी नहीं है, जो कि होनी चाहिए हर क्लास से पहले, आपके पास एक पेन और कॉपी नोट्स बनाने के लिए होनी चाहिए, नहीं है तो चलें इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है, अब याद रखना है कि इदगाम में क्या है, नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाए तो हम इदगाम करेंगे। अच्छा जी, अब हमने जब इदगाम करना है तो यरमलून सीख लिया, फिर हमने यौमिन और लाम रा को अलग कर दिया। यौमिन में हम बगुन्ना करेंगे और लाम और रा में बगैर गुन्ना के इदगाम करेंगे। अब देखो यौमिन, ना, कोई छोड़, बताओ। वो मोबाइल क्यों नहीं जिसने तुड़वाया हुआ है? अच्छा जी, अब इसके बाद यौमिन में हमने फिर मजीद इसकी दो कैटेगरीज बनाई कि मीम और नून में मुकम्मल ऐसे मर्ज हो जाए, ऐसे लगेगा कि एक लफ्ज है, ठीक है। और इदगाम नाकिस में ये होगा, ना तो पूरा पूरा इदगाम हुआ है, ना पूरा पूरा इजहार हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने ये सारा कुछ अभी आपको ये जो मैंने बता दिया बना के कॉलम, ये वही सब कुछ ये लिखा हुआ है अरबी में, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, उससे मज़ीद आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिर्फ यहाँ पर हमने इसको सीखा है, अप्लाई करते वक्त या आपको हम छोटी छोटी असाइनमेंट्स बना के देंगे, उसमें फिर आप इन अल्फाज को खुद ब खुद ढूंढेंगे और साथ छोटी छोटी तारीफ लिखेंगे, ठीक है। वो तारीफ लिखने का तरीका भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है यरमलून, इन्होंने थोड़ी सी तरतीब और तरह लिखी है। हम जैसे लिखते हैं यरमलून, वो याद रखने के लिए एक मजमुआ याद हो जाता है ना। अच्छा जी, अब है मैं यकूल, ठीक है, मैं यकूल। मैं यकूल, या में हमने क्या कहा था, कौन सा वाला गुन्ना होगा, कामिल के नाकिस? नाकिस। नाकिस, नाकिस। ठीक है। मिन निअमती, मिन निअमती, यहाँ पर कामिल। कामिल होगा, कामिल होगा। कामिल होगा। और कौन सी चीज नोट हो रही है, मिन निअमती। यहाँ गुन्ना। पर हम गुन्ना कर रहे हैं ना। नहीं, वो कर तो रहे हैं, इदगाम तो कर रहे हैं, टू काउंट भी दे रहे हैं, ठीक है। जी, जी जी। टू काउंट। ठीक है, ये टू कामिल हो काउंट गया ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। मिम्मा लिल्लाही, यहाँ ये पर भी कामिल हो रहा है। कामिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मिन वालिन, मिन यहाँ एक नाकिस है। वालिन, नाकिस। नाकिस, ठीक है, वो म्यूं वाली आवाज निकल रही है, ना तो पूरा इजहार हो रहा है और ना ही पूरा इदगाम हो रहा है, ठीक है। इस चीज को हमने समझ लिया यहाँ तक, ये हो गए बागुन्ना, यानी कि गुन्ना मौजूद तो है, कहीं कामिल है और कहीं नाकिस है, ठीक है। इस अंदाज से हमने भी पहली बार सीखा था और अल्हम्दुलिल्लाह से याद हो गया था। ये आप भी 2 बार 3 बार 4 बार इसको रिपीट करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा सा याद हो जाएगा। इसके बाद है ये बगैर गुन्ना वाले लाम और रा, मिल्लदुन्हु, मिल्लदुन्हु, मिल्लदुन्हु। अब यहाँ पर हम रुक नहीं रहे, हम यहाँ पर इदगाम करते हुए ना मिल बना देते हैं इसको, मिल, यानी कि मीम और ये जो नून है इसको हमने कर दिया है ड्रॉप, और इसको अब हमने बना दिया है मिल, ठीक है, मिल्लदुन्हु। और इसके बाद है मिर रब्बिहिम, मिर
रब्बिहिम, अब यहाँ पर भी ये जो नून था लिखने में तो आएगा, हम कुरान मजीद के अल्फाज को या वैसे भी जो स्पोकन में भी इन अल्फाज को निकालेंगे नहीं, इन हरूफ को निकालेंगे नहीं, बस इसको पढ़ने में हज़फ कर दिया जाता है, ठीक है, सिर्फ पढ़ने में, लिखने में आएंगे। तो अब इसको हम बना देंगे मिर, ठीक है, मिर रब्बिहिम। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे नहीं हर जगह पर, सिर्फ आप आज इसको समझ लें, बहुत अच्छे से याद कर लें कि जहां आप नून साकिन या तनवीन के बाद लाम और रॉ देखें, वहां नून को ड्रॉप कर दिया जाता है और मीम को डायरेक्टली लाम और रा में मर्ज किया जाता है। मर्ज तो करना ही है क्योंकि हम आज पढ़ ही ये रहे हैं कि इदगाम इदखाल, ठीक है, दाखिल कर देना, यानी कि नून साकिन को हमने यरमलून में दाखिल करना है, नून साकिन या तनवीन के नून को हमने या नून मीम वाव लाम और रा में दाखिल करना है। कैसे दाखिल करना है? यरमलून में से यौमिन निकाला, यौमिन में से फिर हमने या और वाव को अलग कर दिया, नून और मीम में मुकम्मल इदगाम, या और वाव में नाकिस इदगाम, लाम और रॉ में इदगाम तो होगा लेकिन किसी भी तरह को कोई गुन्ना नहीं होगा, ठीक है, बगैर गुन्ना के। तो बगैर गुन्ना के करते हुए क्या करना है, नून को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है, ठीक है। इसके बाद तनवीन में देखें, अगर लिखा हो ये बरकुन, तो एंड पर नून साकिन आ गया ना। इसीलिए जब हम इसकी इस्तलाह पढ़ते हैं ना, इसकी तारीफ करते हैं, तो हम कहते हैं नून साकिन, जो तनवीन के नून को, ठीक है, तनवीन के नून साकिन को, क्योंकि ये जो तनवीन है ये कैसे बनी है, ये जो कॉफ के ऊपर ये जो दो हरकत हैं, दो मातईन की, इनमें से एक हरकत तो हम पढ़ते हैं इस हर्फ के ऊपर, जैसे कॉफ के ऊपर, जो दूसरी है उसे हम नून साकिन से बदलते हैं। तो बरक़ुन यजअलूना, बरक़ुन यजअलूना यौमइज़िन नाइमह। अब ये बिल्कुल इसी तरह से नाकिस हो रहा है, यहाँ पर कामिल हो रहा है, क्योंकि ये इकट्ठे इकट्ठे ही लफ्ज बताए हुए ना, नून साकिन के बाद या आ गया, नून साकिन के बाद नून आ गया, लु लुअम मंसूरा। अब ये जो है ना नून साकिन के बाद सा आया, इसको हमने बाद में सीखना, लेकिन अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे पढ़ते हुए हमारे लेसन में आ गया, तो यहाँ पर भी हमने टू काउंट दे देने हैं, ठीक है। इसके बाद है वलिकुल्लि वजह, वलिकुल्लि वजह, ल्यू कुई, ये इस तरह की आवाज निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने नाकिस कर लिया, फसलामुल्लक, फसलामुल्लक, गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम, गफूरुन नहीं कहना आप, ठीक है, गफूरुर रहीम। अच्छा जी, दो लोग आए जरा, सिर्फ दो लोग हैं, एंट्रीज कीजिएगा, ठीक है, सिस्टर शबाना और सिस्टर नाहिद, ठीक है, सिर्फ अभी आप दो। अच्छा जी, सिस्टर शबाना आप ये पढ़ें नून साकिन के, और सिस्टर आप पढ़िएगा तनवीन वाले लफ्ज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन यकूल मिन निअमह मिम्मा लिल्लाह मिन वाल मिन लदुन्हु मिर रब्बिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सिस्टर नाहिद आप आइए।
بسم الله الرحمن الرحيم برق يجعلون يومئذ ناعمة لؤلؤ منثورا ولكل وجهة فسلام لك غفور رحيم. एक्सीलेंट। यहाँ पर सिर्फ आपका एक छोटी सी हरकत ज्यादा हुई थी। फसलामुल लक, ऐसा ना लगने लग जाए कि ये मुंह किया, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पढ़ा आपने, आइन को भी सही पढ़ा, मंसूरा में आपने यहाँ पर भी ट्रू काउंट दिए। दोनों सिस्टर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पढ़ा। अब ये याद कैसे रहेगा? ये तो अब इतनी सारी चीजें आज हमने सीख ली, गड़बड़ हो सकती हैं। अब क्या करना है, अपना मुसहफ, मैंने अपना मुसहफ बहुत ऊपर भी रख दिया, अच्छा जी। अब मुसहफ खोल लेंगे, कोई भी एक पेज रैंडमली खोल लें, या जैसे आप सुबह अगर फजर के बाद यासीन पढ़ते हैं, या मगरिब के बाद वाक़िया पढ़ते हैं, सूरह मुल्क पढ़ते हैं, जो भी सूरत पढ़ते हैं, या आपने डेली रूटीन सेट किया है कि मैं एक पेज पढ़ती हूँ या दो पेज पढ़ती हूँ, आपने उसी लेसन में से क्या करना है, जहाँ जहाँ पर आप देखें कि जैसे अब मुझे ये नजर आ रहा है, वमीनन्नासी, वमीनन्नासी को अब मैं क्या करूंगी, इसको छोटा सा इसके ऊपर एक एरो लगा के साइड पर जो हाशिया, मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ था, ये देखिए, ये जो साइड पर हाशिया था इसके ऊपर लिख ले कि यहाँ पर कौन सा इदगाम हुआ है, ठीक है। ये एक या दो पेजेस पे आप करेंगे, या फिर इस तरह से जो स्टिकी नोट्स होते हैं ये ले लें, ठीक है। इस तरह के नोट्स, ये स्टिकी नोट लेके उसको आप उसके ऊपर लिखते जाएं, कुरान पाक की एक साइड पे चिपकाते जाएं। कुछ आपका ना कुरान मैसी होगा, ना आपको ये लगेगा कि मैंने ये क्या कर लिया। ये आप जितनी दफ़ा पढ़ेंगे, आपको ये सारे रूल्स ना सिर्फ याद हो जाएंगे, याद आएंगे, बल्कि अगर ये भी हो सकता है आपका कुरान उठा के कोई और पढ़े, उसको भी पता चले कि ये यहाँ पर हम मैंने ये वाला रूल अप्लाई करना है। इबादत की नीयत से जो भी हम काम करें, हम कहते हैं ना कि इबादत की नीयत से करें, तो नीयत ये करें कि मेरा मकसद ये है कि मेरी भी भलाई हो और मेरे साथ दूसरों की भी भलाई हो। अब यहाँ पर हमें कुछ अल्फाज यहाँ पर लिखे नजर आ रहे हैं, दुनिया, बुनियानुन, क़िनवानुन, सिनवानुन। अब यहाँ पर क्या है, जब मैं पहले इसको सीखती थी ना, जब हमने ये तजवीद का कोर्स नहीं किया था, मुझे पता नहीं चलता था कि ये क्यों ऐसे करते हैं। नून तो है इसमें, नून साकिन, लेकिन वो समझ आई कि नून साकिन के बाद फौरन या है, नून साकिन के बाद फौरन या, नून साकिन के फौरन बाद वाव है, नून साकिन के फौरन बाद वाव है। अब ये वाव और या, ये तो खुद आप देखिए कि वाव और या का हुक्म बन जाता है ना। तो अब ये चूंकि दोनों इकट्ठे इकट्ठे आ गए, एक एक चीज़ में दोनों इकट्ठे इकट्ठे आ गए, और इसके बाद ये एक ही हर्फ में है, ठीक है, दो अल्फाज में नहीं है, ये एक ही लफ्ज में जो थे हमारे इदगाम के हरूफ, एक ही लफ्ज में दोनों अल्फा हरूफ इकट्ठे होके आ गए। अब ये वलाकिन ला तदगम लिखा हुआ, वलाकिन ला तदगम, लेकिन यहाँ पर हम इदगाम नहीं करेंगे। हुना का अरबा कलमात, यानी कि चार यहाँ पर कलमे लिखे हुए हैं कुरान मजीद में। दुनिया तो आपको बार 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 मिलेगा, बाकी तरह थोड़े कम यूज़ हुए हैं। अब यहाँ पर हम कहेंगे इजहार होगा, कौन सा इजहार, इजहार मुतलक, ठीक है, इजहार मुतलक, इसको याद कर लें बहुत अच्छे से। फिर जहां आप देखें दुनिया, दुनिया तो बार बार आ जाता है ना, तो वहां पर आप उसको, चलें ग्रीन कलर रख लें करके ग्रीन, साइड पे फिर दोबारा लिखें कि ये इजहार मुतलक हुआ, फिर उस पर भी थोड़ा सा ग्रीन कलर या उसके नीचे एक लाइन ग्रीन फेर दें, ताकि बहुत अच्छे से याद हो और याद आए। हम कहते हैं दुनिया आखिरत की खेती है, ये वाली आयत तो बार 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 कुरान मजीद में रिपीट होती है। तो इसको कैसे पढ़ना है, दुनिया, दुनिया, ठीक है, बुनयानुन, क़िनवानुन, सिनवानुन। इसको अब हमने इस तरह से याद रखना है कि जहाँ जहाँ तिलावत में हमारे पास ये चार अल्फाज आएंगे, आपने उसको हाईलाइट करना है, अलग से लाजमी करना है, ताकि हमें पता चले कि ये जो अल्फाज है यहाँ पर हमने इसको दूं या बुयान ऐसे नहीं पढ़ देना, ठीक है। इस गलती से बचने के लिए कुरान मजीद पे ज़रूर लिखा करें। जैसे हम कोई भी किताब पढ़ते हैं ना, जैसे स्कूलों में भी पढ़ते हैं किताबें, या
कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटी में, तो वो क्या होता है कि जब हम लिखते नहीं हैं तो उसको हाईलाइट करते जाते हैं, ठीक है। हाईलाइट कर लें, अगर आपका मतलब जहन इतना है, आपको लगता है कि शार्प है कि मुझे बस ये हाईलाइट किया हुआ समझ में आ जाएगा, और अगर लगता है कि जैसे हम भूल सकते हैं, जैसे मैंने अपने लिखा, मुझे पता है मैं भूल जाऊंगी, तो अब क्या करते हैं, हम उसको साथ साथ छोटा छोटा सा लिख लेते हैं। बाज़ दफ़ा ये तो कि अपनी लिखाई भी पढ़ी नहीं जाती लिखना भी साफ साफ है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमने ये सारे रूल्स सीखने भी हैं और अप्लाई भी करने हैं। इतने अच्छे से ये सारा कुछ हमें याद हो जाए, याद आए, अप्लाई करना आए, कि जहाँ आप, जहाँ क्यों आप हरम शरीफ में जाएं, वहाँ आप अरबी कुरान, ये जो अरबी मुसव्वता ये कुरान खोल लें, तो आपको वो सारा उसी तरह से पढ़ना है जैसे आप पाकिस्तानी कुरान यानी कि एशियन कुरान पढ़ते हैं। तो आपको वहाँ पर ढूंढना ना पड़े कि मैं पाकिस्तानी कुरान ढूंढूं, ये सारा कुछ आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ेंगे इसका टाइटल, बाकी हमारा, हमने ये वाला लेसन यहाँ तक तो पढ़ा था ना, इससे आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुल खामिस, अल हुरूफुल मुनव्वनह, अत-तनवीन, फतहतैन, कसरतैन, तोमतैन। अच्छा जी, हम रॉ से शुरू कर लेते हैं। रॉ, फतहतैन, रॉन, रॉ, उसके साथ लिख लें फतहतैन, ताकि याद आए, जितनी दफ़ा पढ़ें हमें ये सोचना ना पड़े कि इस ज़बर को क्या कहते थे या दो ज़बर को क्या कहते थे, फतहतैन। रॉ, फतहतैन, रन, रॉ, कसरतैन, रिन, रॉन, रिन। यहाँ पर हम दोबारा लिख लेते हैं, फतहतैन, कसरतैन, और दोम्मातैन, ठीक है, यानी कि दो फतहा, दो कसरा और दो द्वम्मा। रॉ, फतहतैन, रन, रॉ, कसरतैन, रिन, रन, रिन, रॉ, दोम्मातैन, रुन, रन, रिन, रुन। ठीक है, यही कायदा अब सारे हरूफ पर अदा होना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, हैंड रेस करें, तो फिर मैं आप लोगों को बारी देती हूँ, बारी बारी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा लोग आए, ठीक है, अब मेरी तो कोशिश होती है कि आप सारे आए, सब पढ़ें। मेरे अलावा 7 लोग हैं, और मुझे तो फिर 6 हैंड नहीं, मेरे अलावा बस कितने लोग हैं, 2 तो मैं ही हूँ। सिस्टर अतिया और सिस्टर शाकरा, आपका भी हैंड रेस हो जाना चाहिए। अच्छा जी, अब 1 2 3 से कौन है, आप देखिएगा, मैं देखिए। उमेरा का। क्या नाम है आपका, हुमैरा? हाँ, उमेरा काशवा 1 2 3 पे। हुमैरा काशिफ, मैं आपका नाम ठीक करती हूँ, ठीक है। चलिए जी, आप अब हो गई हैं हुमैरा। अच्छा जी, सिस्टर शाजिया, अब आप ना तरतीब अपनी देख लें, सबसे पहले सिस्टर शाजिया, फिर सिस्टर शबाना, उसके बाद सिस्टर नाहिदा, उसके बाद सिस्टर हुमैरा, उसके बाद सिस्टर शाकरा, ठीक है। अब आप लोगों ने एक एक हर्फ की तीनों तीनों हालतें पढ़नी है। चलें जी, नून से शुरू कर लें। जी। नून फतहतैन, नन, पढ़ें पढ़ें। नून फतहतैन, नन, नून कसरतैन, निन, नन, निन, नून दम्मतैन, नुन, नन, निन, नुन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो अच्छी बात पढ़ी ना वो ये कि आपने नून पूरा पढ़ा। जब हम अपना हर्फ पूरा अदा करते हैं ना स्पेलिंग के साथ, उससे ये तो जी टोन भी अच्छी बन जाती है और एक रवानी आती है, ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सिस्टर आगे आए, अगली सिस्टर आ जाए। जी। लाम फतहतैन लन,
لام كسرتين لن لام ضمتين لن पॉज ना आए, दोबारा पढ़ें, लन इन, उसको दोबारा पढ़ें. لن अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पॉज नहीं देना, ठीक है जी. जी अब नेक्स्ट. वाद जी जी पढ़िए. वाद फतहतैन वन वाद कसरतैन लिन वन लिन वाद दम्मतैन वन वन लिन वन. सिस्टर आप इसको दौद पर आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएं, ठीक है. जौद की आपको आदत है ना, अब आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता दौद पर लेके आना, ठीक है. क्योंकि हमने ठीक है. खूबसूरती से पढ़ना, और जिस तरह से अरब पढ़ते हैं ना, क्योंकि हमें बताया गया कि खुश लहानी से पढ़ें, अरबों की तरह पढ़ने की कोशिश करें. तो बस मेरे ख्याल से इतनी दलील काफ़ी है कि इसको हमने जब अरबों की तरह पढ़ना है, या आप देखिए कि हरम शरीफ में कैसे पढ़ा जाता है, दौद पढ़ा जाता है ना, तो हम इसको दौद पर अंडू करें, जौद को दौद पर आ जाएं, ठीक है. हो, ये बहुत मुश्किल नहीं है, जहाँ जहाँ पर आप दौद देखें उसके नीचे एक एक लाइन बनाते जाएं, वो याद आता जाएगा कि मैंने इसको अब दौद पढ़ना है, ठीक है. सबसे पहले नमाज में ही चेंज कर लें, वलो ज़ालिन की बजाय कर लें वलो दॉलीन, गैरिल मग़दूबी, मग़ज़ूब की बजाय मग़दूब कहना शुरू करें, इंशाल्लाह ये आदत हो जाएगी, ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट सिस्टर आए, या वाला पढ़ें. अच्छा जी, अब कोई सिस्टर नहीं पढ़ना चाहती. सिस्टर मैं समिया पढ़ आप लूँ पढ़ें. मैडम या فتاتين या कसरतैन yin या दुम्मतैन yun शीन فتاتين शीन कसरतैन shin शीन दुम्मतैन shun चलें जी. जीम बस 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 सिस्टर शाकरा, बस एक लफ्ज पढ़ा करें, आपने माशाल्लाह दो पढ़ लिए. अच्छा जी, चलें सिस्टर आप आए, नेक्स्ट सिस्टर आए. जीम कसरातैन जन पहले पहले फतहा तईं, ठीक है, फतहा तईं. जीम फतातैन जन जीम कसरातैन जिन जीम दुम्मतैन जुन जन जिन जुन. अच्छा सिस्टर, आपको थोड़ा सा लग रहा है ना, आप थोड़ा घबरा के पढ़ रही हैं. अब आप करें दोबारा से. पहले आप, दोबारा पढ़. हाँ पहले मैं इसको दोबारा आपने, हाँ जी, पहले इतना अदा करें, फिर तीन इकट्ठे पढ़ने, ठीक है. आराम से पहले पढ़. सिर्फ ये फतहा तईन वाला पहले पढ़े. जीम फतातैन जन ठीक है. जीम कसरातैन जिन अब जन इकट्ठा पढ़. जिन अल्हम्दुलिल्लाह. जीम दुम्मतैन जन जुन जीम दुम्मतैन जुन जन जिन जुन. ठीक हो गया जी. क्या तुमने आगे नहीं, अभी अभी रुके. अपना ना हर्फ पूरा अदा करें. जीम फतहतैन जन, इसका मतलब है कि थोड़ा स्लो पढ़ेंगे तो आपका लफ्ज पूरा अदा होगा, लफ्ज पूरा अदा होगा, आपकी ट्यून खुद ब खुद बनती जाएगी, ठीक है. फिर आपको दोबारा दोबारा से लगेगा नहीं कि मैंने वो छोड़ दिया या ये छोड़ दिया. अच्छा पढ़ा आपने, अच्छी कोशिश की है. मजीद आपने बेहतरीन कोशिश करने की कोशिश करनी है, ठीक है. परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन हम खुद को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं. आप अगला भी पढ़ना चाहती हैं, पढ़ लें, ये वाला भी पढ़ लें. काफ कसरा काफ फतातैन कन पहले काफ को आराम से अदा करें, काफ. काफ फतातैन कन काफ फत कसरातैन किन कन किन काफ दुम्मतैन कुन कन किन कुन. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, ये दुम्मा नहीं है, दुम जो दुम टेल नहीं है, ये दोम्मा है, इसके ऊपर फतहा है. दोम्मातैन, दोम्मा दोम्मातैन, ठीक है. अब नेक्स्ट सिस्टर आ जाएं, आप कौफ से शुरू करें. अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, बेहतरीन कोशिश. थैंक यू. ये यहाँ से शुरू करें, नुक्तों वाली कौफ से. कौन सी सिस्टर पढ़ेंगी अब.
چلیں اگر کوئی سسٹر نہیں آ رہی تو پھر میں خود بلاؤں گی. یہ میں عطیہ. چلیں عطیہ آ گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف فتحتین کن، کاف کسرتین کن، کاف دو امتین کن، کن کن کن. اگلا جی. اگلا بھی پڑھیں. خا فتحین خن، خا کسرتین خن، خن خن، خاف دو امتین خن، خن خن خن. جی بس الحمدللہ. سسٹر آپ کا نا خا پورا نہیں ادا رہا، جیسے خا یہ حلق سے آواز نکالنی ہے، ادنا الحلق سے. خا فتحتین خن، خا جی. کسرتین خن، خن خن، خا ضمتین خن، خن خن خن. ٹھیک ہے، یہ خا والے لفظوں کی زیادہ پریکٹس کریں. جی. ٹھیک ہے، جی. آخرت، خرم، اسی طرح جس میں جی. خواخا ہے نا ان لفظوں کے خیر. ٹھیک ہے، تمت بالخیر، اس طرح جو جہاں جہاں خوا یہ یوز ہوا وہاں اس کو آپ پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی سسٹر شاکرہ ہاں آپ نے ہاں نا بہت تیزی سے پڑھا تھا، آپ ذرا غین کا پڑھیے. انشاءاللہ. سسٹر جی. شاکرہ غین سے شروع کریں، صرف غین پڑھیں گی. ٹھیک ہے، باقی آگے نہیں آپ نے دوڑ لگانی. اوکے. غین فتحتین غن، آرام سے غین آرام سے. ٹھیک ہے غین آرام سے، کسرتین آرام سے پڑھیں، سکون سے، سپیڈ زیرو کریں. غین فتحتین غن، الحمدللہ. غین غین کسرتین غن، غن غن، غین ضمتین غن، غن غن غن. الحمدللہ بہترین ہو کیا. اچھا جی اب پڑھیں گی سسٹر سمیہ، آپ پڑھیں. سسٹر سمیہ اسامہ. ها فتحتين حن، ها كسرتين حن، حن حن، ها ضمتين حن، حن حن حن. الحمدللہ. سسٹر آپ کی آواز مجھے تھوڑی سی آ رہی تھی باؤنسوں کے، باقیوں کا آواز آئی تھی سسٹر کی صحیح سے؟ نہیں باؤنس ہی آئی تھی. اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہو کیا. آپ نے تصویر ہا پڑھوں. چلیں پڑھ لیں پڑھ لیں. حا فتحتین حن، حا کسرتین حن، حن حن، حا ضمتین حن، حن حن حن. اچھا سسٹر الحمدللہ یہ آپ نے بہت خوبصورت پڑھا. اب آپ آئین کو اسکپ کریں، یہ والا ہا پڑھیں. ہا فتحتین ہن، ہا کسرتین ہن، ہن ہن، ہا ضمتین ہن، ہن ہن ہن. الحمدللہ. یہ فرق سب کا آنا چاہیے، ایک ہا اور ایک ہا. سینے پہ چاہے تو ہاتھ رکھنے. ہا فتحتین ہن، ہا کسرتین ہن، ہن ہن، ہا ضمتین ہن، ہن ہن ہن. تاکہ وہ سینے سے جو بالکل اقصا ہے یعنی کہ حلق سے دور ہے نا، تو اقصا سے آواز آنی چاہیے. الحمدللہ. اچھا جی اب ایک سسٹر عین اور حمزہ پڑھیں گی. کون پڑھنا چاہے گا؟ کون شہید ہونا چاہتا ہے؟ اچھا جی جی میں پڑھوں. چلے پڑھیں. عین فتحتین عن، عین کسرتین عن، عن عن، عین ضمتین عن، عن عن عن. الحمدللہ. حمزہ بھی پڑھے. حمزہ فتحتین ہن، حمزہ فتحتین ان، حمزہ کسرتین ان ان، حمزہ ضمتین، حمزہ آرام سے پڑھے ضمتین، پھر پڑھا جائے گا. حمزہ فتحتین ان، حمزہ کسرتین ان، حمزہ ضمتین ان. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا جی سسٹر آپ ایک دفعہ اس کا ٹائٹل پڑھیں. جی میں جی. الدرس الخامس الحروف المنونة التنوین.
فتحتين كسرتين ضمتين. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा सिस्टर समिया आप हैं हमारे साथ? जी जी. अच्छा सिस्टर समिया आप इसकी तिलावत कीजिए, फिर हम एक एक सिस्टर को एनालाइज करने के लिए बुलाते हैं. ठीक है, आप जरा तिलावत ठीक कीजिए है. इसकी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. आपका माइक म्यूट है टीचर. अच्छा जी, अब आ जाएं, 3 लोग आ जाएं. 3 लोग अपने हैंड रेस कीजिएगा. मैं कह रही मेरी आवाज़ पता नहीं क्यों नहीं पहुंच रही. जजाकिल्लाह खैरा जिसने मुझे बताया कि मेरा माइक ही म्यूट है. आपने क्या बोला हमने सुना ही नहीं, हमारे थोड़ा सा अच्छा नेट चला गया इसके लिए, अच्छा, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि सुना नहीं. 3 लोग हैंड रेस कीजिए. 3 लोग. अच्छा जी, सिस्टर नाहिदा, 2 और हैंड चाहिए मुझे. सिस्टर शाकरा, ठीक है. एक और सिस्टर आ जाएं. अच्छा जी, कौन सी सिस्टर आई हैं? मैं इसको दोबारा शेयर भी करती हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई कहीं. जब आपको मेरी स्लाइड अच्छी सी शो होने लग जाए मुझे बताइएगा, ठीक है. उस्तादा जी आ गई. कैसी शो हो रही है वो? पूरी नहीं शो हो रही ना? नहीं, बस वो लेसन 13 तजवीद लिखा हुआ है.
नहीं, पूरी स्क्रीन पे नहीं आई है ना, कुछ गड़बड़ कर आ दी रही है, मैंने। पूरी स्क्रीन आ रही है। और मैं दरमियान में आ रही हूँ। जी आप जी यहीं जी। नहीं आ रही है, अभी प्रॉपरली उस तरह नहीं आया जैसे पूरी सूरत आ रही थी पहले, उस तरह नहीं आ रही। पूरा नहीं अच्छा आ रही है। अभी सिर्फ तजवीद वाला जो है ना वो स्लाइड्स आ रही हैं साइड पे। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए मैं दोबारा कोशिश करती हूँ इसको, पावर पॉइंट की दोबारा ऑन करते हैं। अब ठीक हो गई? अभी भी जी अब स्लाइड्स चल रही क्या हैं। बात ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं एक एक करके। चलें जी, यहाँ से जो हैंड रेज थे वो रेज ही हैं, डाउन तो नहीं हो गए? सिस्टर नाहीद थी, सिस्टर शाकरा थी, और एक और कौन सी सिस्टर थी बता दे। शफक। सिस्टर शफक। है? मैं भी, शबाना यास्मीन। हाँ, इसके बाद पहले मैं इन तीन से करवाऊंगी, इसके बाद फिर ये तीनों अपने हैंड डाउन करेंगे, फिर आपकी बारी आएगी, ठीक है? अच्छा जी, ठीक, सिस्टर नाहिद आ जाए, सबसे पहले आप आ जाए। जी मैडम। जी पहले आऊज़ु बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब आप मुझे बताएं आपने क्या रूल अप्लाई किए यहाँ पर। मैडम यहाँ पर वाव वाव में राउंडिंग होती है और फिर उस पे फतहा है तो उसको लाम के साथ जब ज्वाइन किया है तो लाम पर तवस्सुत थोड़ी सी आवाज को चलाया है, फिर आइन वसतुल हलक से अदा हुआ है, और स्वाद जो है फिर उस ये मोटे मुफखम है तो वल आसर, और रा फिर आगे आ गया है तो मैंने यहाँ पर रा को वक्फ किया, तो वक्फ किया तो फिर रा को मैंने साकिन सुकून दिया, इस वजह से रा भी मुफखम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी जो आसान डेफिनेशन क्या होगी, रॉ साकिन से पहले, साकिन से पहले फतहा, ठीक है? रॉ साकिन से पहले साकिन, और साकिन से पहले फतहा। अच्छा जी, लाइट चली गई, अब नेट शायद चला जाए, हम इसको कर लेते हैं इस पे। मैं अंधेरे में डूब गई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब आपको मेरी आवाज, तस्वीर, स्लाइड सब कुछ से ठीक ठीक आ रहा है? जी आ रहा बिल्कुल है। ठीक। यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हम कर रहे थे रॉ साकिन, ठीक है? हमने इसे खुद साकिन किया, जैसे सिस्टर ने बताया कि इसे उन्होंने मुफख्खम पढ़ा, तो मुखफ़्फ़म जब पढ़ा तो फिर उसकी कोई ना कोई वजूहात जो हमें पता होनी चाहिए, सबब जिसको कहते हैं, ठीक है? हुक्म बिल्कुल मुफख्खम होगा, सबब क्या है? हमारे पास ये रॉ साकिन हो गया। अब रॉ साकिन से पहले साकिन, राज स्वाद साकिन से साकिन, पहले। ठीक है? और उससे पहले जो आइन है उसके ऊपर फतहा है, ठीक है? अब हम कहेंगे रॉ साकिन से पहले, साकिन से पहले फतहा। अब इस सूरत में हम इस रॉ को पुर पढ़ेंगे, मुफख्खम पढ़ेंगे, वल अस्र, वल अस्र, अस
स्वाद की सीटी कैसे आएगी, मुंह में ढेर सारी हवा भर ले, फिर सौद, सौद, वल असर। ठीक हो गया। अब दूसरी सिस्टर आएंगी, यहाँ से शुरू करें, इन्नल इंसान से। सिस्टर शाकिरा आप आएंगी? सिस्टर नहीं आ रही तो सिस्टर सादिया को चांस देते हैं। अस्सलाम मैं वालेकुम पढ़ रही हूँ वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पढ़ रही हूँ वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पढ़ रही हूँ। जी जी पढ़े पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल इंसान से पढ़ो। जी हमजा हमजा को हम नून के साथ मिलाएंगे और इन्नल इस पे थोड़ा सा रुक कर आवाज़ अदा करेंगे। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। हमजा हमजा नून नून साकिन के बाद जो है हुर्फ इख्फा सीन आ रहा है, सीन सीटी वाला है और इसको हम 2 काउंट पढ़ेंगे। इस पे हमारी अलिफ सगीरा आ रही है। और ला के बाद फी जो है, फी के नीचे या से पहले कसरा आ रही है, तो हम इसको 2 काउंट पढ़ेंगे। और खा जो है, खा हमारा हल्फे हलक। हलक है, तो खुस्र। हम इसको रा को जो है इस पे हम वक्फ कर रहे हैं, लेकिन रा के नीचे कसरा है, लेकिन उससे पहले हमारा जब हम साकिन कर रहे हैं तो खा के ऊपर जो हमारा दोमा आ रहा है, उसकी वजह से हम रा को पुर पढ़ेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब आप थोड़ी सी डिटेल मेरी सुनिए। ठीक है, ये माशाल्लाह हाँ, जो आप मैंने एक्सेल। इतनी जी जी सही नहीं पढ़ा नहीं नहीं, बताई, सही सही पढ़ा आपने, पहली दफा सही। बताई आपको मैंने ना। अल्हम्दुलिल्लाह। आप में हाँ कोई भी गलत नहीं पढ़ता, बस जाहिर सी हाँ बात है अभी आप सीख रहे हैं। हम आपको क्या हाँ सिखा रहे हैं, हम आपको दूसरों को सिखाना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरों को, हाँ जब आप स्टूडेंट मोड में भी बैठे हुए, टीचर मोड में भी बैठे हुए, ठीक है, अब आपने टीचर भी तो बनना है ना, आपने आगे पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाना है हम हाँ। सबसे कहेंगे। सबसे पहले लेकिन देखिए, मैडम मैंने ये पहली दफा आपको सुनाया है इस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने मैंने कभी आप आपको हाँ फर्स्ट टाइम डबल थम्स अप दिया कोशिश मैंने। की है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही कहती हूँ, सब कोशिश किया करें, कोशिश करने में कोई किसी हाँ किस्म का तरद्दुद ना करे। अच्छा जी, सबसे पहले हमजा कसरा के साथ फौरन डिसाइड कर लें कि ये कहाँ से अदा हो रहा है, हरूफ हल्की में से है, और कहाँ से अदा हो रहा है हमजा। हमजा और हमजा ह, ठीक है, ये हम इसको इस तरह से आइन और हा जोड़ी जोड़ी जो बना लेते हैं ना, उससे हमें याद हो जाता है कि ये अक्सा वाला है। ठीक है, तो ये अक्सा से अदा हुआ। नून मुशद्दद, नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो, गुन्ना फितरी है, हम इसे 2 काउंट दिए बगैर आगे नहीं जा सकते, मैं रोक लेता है। ठीक है, इन्ना जब हम करेंगे ना, अपने क्यूसीज में भी आगे बढ़ेंगे, जो लोग आगे बढ़ गए हैं, तो हम देखेंगे कि इन्ना जो है ना, ये वैसे भी बहुत सारे असर डाल देता है। ये जल्दी आगे नहीं बढ़ने देता, ये कहता है पहले पूरा मुझ पे फोकस करें फिर आगे जाएं। तो यहाँ पर हम इसको मुशद्दद है, पहला नून साकिन है, दूसरा नून फतहा के साथ है, तो हम पढ़ेंगे, ये देखें नून साकिन के बाद नून ही आ गया है, यरमलून में से नून भी आ गया है ना, तो ये पूरा पूरा इसके अंदर नून मर्ज भी हो गया। अब हम कहेंगे इन, इन्ना, यहाँ पर ई आई आई लिख लें ताकि याद रहे कि इसको हमने ए नहीं करना। ठीक है, ए वाली जितनी साउंड थी उसको खत्म करके ई में बदल दें। अच्छा जी, दूसरा जो नून था फतहा के साथ, उसको लाम से मिलाया, मिलाते हुए हिलाना नहीं। ठीक है, इन नल, नल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर है ई, यहाँ फिर दोबारा से ई लिख लें। इसके बाद है नून, नून साकिन है, मैंने कहा था नून साकिन या मीम आ जाए साकिन तो फौरन अलर्ट हो जाए। सिस्टर अलर्ट हो गई, उन्होंने यहाँ बता दिया कि यह हरूफ इख्फा है। चूंकि अभी हमने पढ़े नहीं है तो अभी हम इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर 2 काउंट करेंगे। ठीक है, अभी आज हमने इजहार और इदगाम को बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर हमने 2 काउंट दिए, इन,
इंस। कैसे अदा करना है कि नून साकिन के बाद सीन फौरन अदा होने ही वाला है। इसको हम जब स्पेलिंग लिखते हैं तो हम लिखते हैं इंस, ठीक है, इंस। फिर ये जो सीन के साथ हमें अलिफ सगीरा नजर आ गई, अगर हम इसे इस तरह से खोल के लिखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा इंसान। हमें पता चला कि अलिफ सगीरा अलिफ मद के कायम मुकाम है तो 2 काउंट करेंगे। इसके बाद नून फतहा के साथ है, खींचना नहीं है। अब इसकी हरकत खींचे ना, इसके लिए आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम लफी को जल्दी पढ़ेंगे। अब ये भी हमने ला नहीं कर देना, ला का माना होता है नहीं, ठीक है, इस ला का माना है अलबत्ता, ठीक है। अलबत्ता यकीनन, यानी कि ये इसमें ताकीद है, ताकीदी बात है कि यकीनन इंसान खसारे में। और अगर हम इसको ला कर देंगे तो हो जाएगा कि बेशक यकीनन इंसान एक, ये बेशक का तर्जुमा यकीन यहाँ भी है, ठीक है, ताकीद एक यहाँ भी है कि बेशक इंसान खसारे में नहीं है, तो बहुत उल्टा ये इसका माना चला जाएगा। तो ल को हमने जल्दी पढ़ के फी पढ़ना है साथ। फी पे सिस्टर ने बताया कि कसरा है, यामत बन गई। अब यहाँ पर 2 काउंट देंगे, लफी, इन्नल इंसान लफी, लफी खुस्र, हाँ, ठीक है, जो अह वाली आवाज निकलती है, इसको दम्मा हम राउंडिंग का भी ख्याल रखेंगे और इसको मुफख्खम भी पढ़ना है, क्योंकि ये खुस्सा दौतिन क़िज़ में भी है। तो यहाँ पर इसके बाद हमें सीन साकिन नजर आया। अच्छा जी, स्वाद और सीन का फर्क वाज़िया नजर आना चाहिए। कोई कुरान खोल के सुन रहा है या कुरान खोले बगैर, उसे फौरन पता चलना चाहिए आपकी तिलावत से कहाँ आपने स्वाद पढ़ा है, कहाँ आपने सीन पढ़ा है। सीटी आएगी खुस, 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 बारीक सीटी, ठीक है। इसके बाद रॉ, रॉ का जैसे हुक्म हमने असर में किया था, इसी तरह से खुस्र हम कहेंगे। रॉ साकिन से पहले, साकिन से पहले दोम्मा, ठीक है। अगर कसरा होती है तो फिर इसको बारीक पढ़ लेते, रॉ साकिन से पहले साकिन, साकिन से पहले दोम्मा। यहाँ पर था रॉ साकिन, रॉ साकिन से पहले, साकिन से पहले फतहा। हमने रॉ के अहकाम भी करने, ठीक है, वो भी काफ़ी सारे हैं। डराने के लिए नहीं कह रही, सिर्फ इस समझाने के लिए कि ये भी बहुत ज़रूरी है, रॉ का भी बहुत ख्याल रखना है। अगर यहाँ पर हम पढ़ते हैं वल औसरी, फिर हम इसको बारीक पढ़ते हैं, हम इस तरह से पढ़ लेते हैं वल औसरी इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्ला, यानी कि अगर हम इसको रवानी करते रुकते नहीं तो फिर बारीक पढ़ना था, इस रॉ को भी इस रॉ को भी, ठीक है। चले अब एक और सिस्टर आए, मेरे पास नाम उलट पुलट हो गए हैं। अच्छा जी, शफक। शफक, चले ठीक है, आ जाएंगे। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात। चलिए आप यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है, फिर हम एक सिस्टर को और चांस दे देंगे। सिस्टर शबाना अलर्ट रहिएगा, आपने वातावासव से करना है। इल्लल में मैम हमजा है, इसको जो है बारीक पढ़ेंगे, कसरा के साथ है तो बारीक पढ़ी जाएगी, और लाम से इसको मिलाएंगे। लाम से मिलाने के बाद फिर लाम पे फतह है, लाम फतह लाम से दोबारा मिलेगा तो यहाँ पर लल हो जाएगा, है ना ये। फिर इसके जी बाद फिर लाम अगेन फतह पे है तो फिर वो 1 काउंट ही पढ़ा जाएगा, उसको खींचेंगे नहीं। फिर इसके बाद जी जो है या मद्दा है, इसको 2 काउंट पढ़ेंगे ना, जी 1 काउंट पढ़ी जाएगी बगैर खींचे। अ हमजा है जो है इसको 1 काउंट ही पढ़ेंगे, और उसके बाद यानी आ के साथ अलिफ भी है तो ये 2 काउंट पढ़ी जाएगी। तो फिर इसके बाद जो है ये मद्दा के कायम मुकाम आ जाएगी ना, तो फिर 1 काउंट है, नू वाव मद्दा है, तो इसको जो है वो 2 काउंट पढ़ेंगे। फिर 1 काउंट है, राउंडिंग होगी पूरी, और आ जो है वो हरूफ हल्की में से है तो 1 काउंट के साथ पढ़ी जाएगी। मी कसरा के साथ है, बारीक करके पढ़ेंगे। फिर लू जो है वाव मद्दा है, 2 काउंट्स पढ़ेंगे राउंडिंग के साथ।
نہیں راؤنڈنگ نہیں، لو کو جو ہے سواد سے ملائیں گے، نہیں راؤنڈنگ تو ہوگی، راؤنڈنگ تو ہوگی، جی ٹھیک پڑا تھا آپ راؤنڈنگ کے نے۔ ساتھ سواد سے ملائیں گے، ہاں جی، سواد کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے تو، اور اس کے بعد سواد پہ وہ بھی ہے فتح بھی ہے، تو اس کو جو ہے وہ منہ کھول کے پڑھیں گے پورا، تو کسرہ اس پہ وہ بھی ہے، کیا نام ہے، مد سو پہ جو ہے وہ الف صغیرہ بھی ہے۔ الف صغیرہ بھی، تو اس کو ہم 2 کاؤنٹس پڑھیں گے، اور لی کو جو ہے کسرہ ہے پورا باریک کر کے پڑھیں گے، ہا الف صغیرہ کے ساتھ ہے تو اس کو 2 کاؤنٹس پڑھیں گے، تی کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے پورا۔ اور اس کے سپیلنگ ہم ساتھ لکھ لیں گے تی، ٹھیک ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ سسٹر نے کافی سارے رول آپ کو لکھوا دیے، بتا دیے، ٹھیک ہے۔ الا الذین، یہ جو وی ہے نا، وال ہے، جو زال، یہ میں آپ کے ساتھ ایک پوسٹ بھی شیئر کروں گی، زال، سا، اور ایک اور ہے، کون سا ہے، کون بتائے گا؟ غ وہ، اس کو کیسے پڑھنا ہے کہ جو ہمارے ثنایا الیہ ہے نا، یہ جو ہمارے 2 بڑے دانت ہوتے ہیں، میں نے گندے مندے بنائے لیکن آپ اس کو دانت ہی سمجھیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہماری، اب ہماری زبان یہاں تھوڑی سی باہر آ جائے گی، ٹھیک ہے، باہر لے کے آنے کا پتہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ زا کے ساتھ نہیں گڑمنڈ ہوتا، سا کے ساتھ، سین کے ساتھ گڑبڑ نہیں ہوتا، تو الذین، زبان باقاعدہ باہر نکال لیں۔ میں بتا دیتی ہوں تمہیں، یہاں سے نیچے گرا کے چل جا اپنے بیڈ پہ۔ اچھا جی، ایک سسٹر جو ہے نا ہماری، وہ اپنے بچے کو بیڈ سے گرانے لگی، نہ گرائیں سسٹر، نہ، بالکل بھی نہ گرائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، الذین، یہ جو ہے نا الا تھا، الا 2 کاؤنٹ بنتے تھے کیونکہ ہمیں فتحہ کے ساتھ الف مد نظر آ رہا تھا، لیکن ملانے کی صورت میں اسے بھی ڈراپ کیا اور ہم نے حمزۃ الوصل کو بھی ڈراپ کیا۔ اگر ہم پڑھتے الا، پھر ہم پڑھتے الذین، تو اس صورت میں ہم یہ دونوں جو الف تھے پڑھتے، حمزۃ الوصل بھی پڑھتے اور الف مد کو بھی پڑھتے۔ اب یہاں پر نہ تو حمزہ پڑھا گیا، نہ یہ الف مد پڑھا گیا، یہاں پر سسٹر نے بتایا کہ زی یا مد بن گئی، 2 کاؤنٹ کر لیے، یہ بھی ٹھیک تھا۔ یہ ایک چیز آئی ہے الگ، یہ ہم مدود میں کریں گے۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہ حرف المد سے پہلے حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے، حرف المد سے پہلے حمزہ آ جائے تو اس صورت میں اب اس کو فتحہ کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، حمزہ آیا ہوا ہے، یہ حمزہ کی خاص بات ہے۔ حرف المد سے پہلے حمزہ آ جائے تو یہ پھر الف مد کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اس مد کو ہم کہا کریں گے مد بدل، اور یہاں پر ہم 2 کاؤنٹ کیا کریں گے۔ اچھا جی، منو، میم پہ ایک حرکت پڑی، نون پہ راؤنڈنگ ضرور بالضرور خیال رکھنا ہے۔ یہ جو ہے نا دائرہ، اس کو کہتے ہیں صفر دائری، اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں پڑھا جائے گا، آمنو، یعنی کہ نو، نو آ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے آمی لو میں بھی یہ کچھ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا، واؤ کو بھی ڈراپ کیا، مد ڈراپ کر دی، کیونکہ ہم نے اس لام کی دوما کو ڈائریکٹلی صاد سے ملانا ہے، موٹی سی ٹی، اور یہ میں نے آپ کے لیے کھول کر بھی لکھ دیا کہ یہ جو الف صغیرہ ہے، یہاں پر الف صغیرہ ہے تو اسے ہم نے الف مد کے قائم مقام کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ دینے ہیں، صاد کو 2 دفعہ بھی پڑھنا ہے، پر بھی پڑھنا ہے، سٹی کا بھی خیال رکھنا ہے، ساکن ہو یا مشدد ہو تو زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تی کو جیسے سسٹر نے بتایا کہ باریک پڑھیں گے، صالحاتی، اور اگر ہم اس کو ساکن کریں گے نا، جیسے میں کہوں گی میرا سانس ٹوٹتا ہے، میں کہوں گی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ٹھیک ہے، پھر ہم 6 کاؤنٹ کی اپنی مد پوری کر لیں گے، اور تا میں ہم سے تو تھ والی آواز نکال لیں گے۔ اچھا جی، ایک سسٹر شبانہ، میں میم نے ایکسکیوز میم، وہاں پہ جو سرکل بنا ہوا تھا الفوں کے اوپر، وہ ہوں، اس لیے بنا ہوا تھا کہ ہم نے اس کو جمع بنائی تھی، جمع کے لیے جو ہم نے آمینہ اور عاملہ کو ہم نے جمع میں کیا، تو اس لیے پیش لگا کے واو الف لگایا،
तो वो लिखने में आया, पढ़ने में नहीं आएगा, पढ़ने में यही नहीं, इस सिफर का एक नाम है ना, इसको सिफर दायरी कहते हैं, डायरी, ठीक है। सिफर डायरी मैंने जी। लिख दिया सिफर दायरी। ये जमा की निशानी है, ठीक है, जमा की निशानी है, लेकिन ये अलिफ पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से क्यूसी करने के हमें ये भी फवाइद साथ साथ मिलते हैं। सिस्टर शबाना, आप हमारे साथ हैं? जी जी। जी आइए, वतवासौ से शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र। वतवासौ में वाव के ऊपर हरकत है, और वाव को राउंड करके हम बगैर खींचे पढ़ेंगे। तवासौ, तवासौ में ता मुतहर्रिक है, इसे बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव को राउंड करके, साथ में अलिफ मद आ रही है, तो इसे 2 काउंट करेंगे। सऊ में वाउलीन है, इसे हम नरमी के साथ जल्दी पढ़ेंगे। सौद को हमने मुफख्खम पढ़ना है, ये हरफ मुस्तालिया है। और इसमें जो अलिफ दायरी आ रहा है, सिफर दायरी आ रहा है, इसे नहीं पढ़ेंगे। बिलहक्की, बिलहक्की में बा के नीचे कसरा है, और इसका भी हम अलिफ ड्रॉप कर देंगे। और साथ में लाम के साथ हम इल्हाक करेंगे बा को। बिल, लाम को हिलाएंगे नहीं। हक्की, हा बारीक पढ़ेंगे, और हा जो हमारा हरफ हल्की वसतुल हल्क से है, इसे हम वसतुल हल्क से अदा करेंगे। कौफ को हम 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि कौफ मुशद्दद है, और इसे भी हम मुफख्खम पढ़ेंगे और जबान की जड़ से अदा करेंगे। हक्की वतवासौ, यहाँ पर भी वाव को हम राउंड करेंगे और बगैर खींचे पढ़ेंगे। तवा, यहाँ पर तवा में भी ता को बगैर खींचे पढ़ेंगे, मुतहर्रिक है, और वाव के साथ अलिफ मद्दा है, इसे भी हम एक अलिफ की यानी 2 काउंट पढ़ेंगे। सौ, सौ में भी हमने वाउलीन है, इसे हम नरमी के साथ जल्दी पढ़ेंगे, और साथ में आने वाला जो अलिफ है, ये सिफर दायरी है इसके ऊपर, इसे हम ड्रॉप कर देंगे। सौद को हमने पुर पढ़ना है, और नरमी के साथ जल्दी पढ़ना है। साउ बिस्सब्री, इसमें हम अलिफ को बा के साथ जो अलिफ आ रहा है, अलिफ मद, इसे ड्रॉप कर देंगे। बा को सौद के साथ मिलाएंगे, बा के नीचे कसरा है, सौद के साथ मिलाते हुए सौद को हमने सीटी के साथ मुफख्खम पढ़ना है। बिस्सब, बा के साथ मिलाते हुए सौद को कलकला करेंगे, बा पर स्वाद को मुफख्खम पढ़ेंगे और बा पर कलकला करेंगे, और रॉ के नीचे कसरा है। जब हम इसे रवानी के साथ पढ़ेंगे तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे, जब हम इस पर वक्फ करेंगे तो फतहा आ रही है, तो इसे हम बारीक पढ़े मुफख्खम। बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र। सब्र, ठीक हो गया, सब्र। अच्छा जी, एक चीज मैं बताना चाह रही थी यहाँ पर, जब हम इसको मुशद्दद ऑफ जो है, जितने भी जो कलकला वाले लेटर्स है ना, जब वो मुशद्दद होके आते हैं तो फिर उसमें कलकला नहीं किया जाता, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना, ये ना हो कि आप करें बिल हक, हक की, यानी कि ये एक को कलकला बना के दोबारा कलकला। हाँ, यहाँ पर अगर हम रुकेंगे तो फिर फर्स्ट ग्रेड का कलकला होगा, जैसे वतवासौ बिल हक, ठीक है। यानी कि एक दूसरे को हक की तलकीन करो और सब्र की, ठीक है। यहाँ पर हमने ये भी सीखा कि अपना सीखना, अपना ईमान लाना, अपने अच्छे अमाल करना काफ़ी नहीं है, बल्कि एक दूसरे को भी हक बात की तलकीन करनी है और एक दूसरे को भी सब्र की तलकीन करनी है, ठीक हो क्या जी। सौद को सिस्टर ने बता दिया, मुफख्खम यानी कि पुर पढ़ेंगे। अब हमारे पास रॉ साकिन से पहले, साकिन से पहले फतहा। अब इस सूरत में हमने इसको मुफख्खम पढ़ लिया, और जैसे सिस्टर ने कहा कि अगर रवानी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे। अब रवानी की सूरत में क्या होगा, अब यहाँ पर हमारी सूरत तो कंप्लीट हो गई, तो फिर हम कहेंगे वतवासौ बिस्सब्रि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जब भी इस बात को आप अपने पास लिख लें, अगर आपका सांस छोटा है तो आपने इस चीज की तरफ आना ही नहीं है कि मैं अगली सूरत मिलाऊं, क्योंकि बिस्मिल्लाह तक पढ़ लेना फिर काफी नहीं है। फिर आपको इससे अगली सूरत की पहली आयत या पहले कुछ अल्फाज पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 3 तरह के तरीके होते हैं पढ़ने के। आप आऊज़ु बिल्ला, बिस्मिल्लाह और साथ ही सूरत एक सांस में मिला के पढ़ लें।
अगर ये मुश्किल है तो आऊज़ु बिल्ला और बिस्मिल्लाह को पढ़ लें एक सांस में, फिर सूरत शुरू कर लें। ठीक है। और फिर वो जो सबसे बेहतरीन तरीका, या जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आसान तरीका हमें सिखाया, हर हर आयत पर रुक जाएं। पहले सबसे पहले तावुज़, फिर बसमला पढ़ लें, उसके बाद सूरह शुरू कर लें। लेकिन कुछ लोगों का सांस लंबा होता है, वो क्या करते हैं, जैसे कारी हजरात होते हैं ना, एक छोटी सूरत के साथ पूरी एक छोटी सूरत भी मिला लेते हैं। उस सूरत में फिर ये करते हैं कि वो बिस्मिल्लाह पढ़ के रुकते नहीं है, फिर वो उसके आगे कुछ अल्फाज शामिल कर लेते हैं, या अगर पूरी सूरत पढ़नी तो पूरी सूरत पढ़ लेते हैं। हम कहाँ जाएंगे, हम आसानी की तरफ जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम एक एक आयत पर वक्फ करेंगे, और जहाँ पर हमें सोली मिलेगा हम वहाँ भी वक्फ करेंगे। जीम पर तो सभी करते हैं ना वक्फ। तो कोशिश करनी है कि वक्फ करना है, सही जगह पर करना है, और ये जहां पर जरूरत पड़ेगी इआदा भी करेंगे। वो कैसे पता चलेगा, साथ आप तर्जुमा खोल लिया करें। ये तो हमने की उसी में की थी सूरतुल असर, अच्छी तरह से हमें इसका सारा पता भी चल गया था, क्या तर्जुमा, क्या इसकी डिटेल है। हमने इसकी शरह भी कर ली, इसके अफ़ाल भी कर लिए। तो जैसे जैसे हम पीछे सूरतों की तरफ आएंगे, सारी तो नहीं अभी हमने की, तो उनके साथ साथ आप तर्जुमा देखा करें। और सिस्टर शाकरा, आपने पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, इस तौ को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, जब भी आप पढ़ें तो जहां भी नजर आ जाए आपने क्या करना है, जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, अपना नाक जोर से पकड़ लें जब हम तो पे आए, ये जो नून गुन्ना खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी ये प्रैक्टिस है, जैसे हम कहते हैं इहदीना सिरात, जब तो पे पहुंचे तो ना हो जाए, अपना नाक जोर से पकड़ लें, उसके बाद छोड़ दें। ठीक है, ये ना हो कि उसको पकड़े पकड़े आप पूरी नमाज पढ़ लें, नहीं, सिर्फ तौआ पे आपने ऐसे करना ताकि ये जो तौआ हो जाता है ना, इसकी ये वाली गलती हमारी निकल जाए। ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास 10 मिनट हैं, यानी कि आपके पास भी हैं। हम ऐसा करते हैं, पीछे से कोई सूरत यादा कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? जी बिल्कुल। सिस्टर शबाना, तुम, अच्छी जी। ये तो कहती मैंने हैं कि कहा जाओ ना कहीं, है ना। ये तो मैं पूरा दिन भी पढ़ाऊंगी तो ये कहेंगे थोड़ा सा और। आपके साथ वक्त गुजारते हैं तो अच्छा लगता है ना। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सूरह अल हुमाजा निकाल लें, मुसहफ खोल लीजिए। एक एक आयत सारी सिस्टर्स पढ़ेंगी, एक एक आयत पढ़ते जाएं, ताकि 11:30 तक हमारी क्लास भी कंप्लीट हो जाए और सबकी बारी भी आ जाए। जी, सिस्टर शाजिया से शुरू करेंगे। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة الذي جمع एक مالا मिनट, एक मिनट रुकिए وعدده. सिस्टर, एक मिनट रुके। आपने यहाँ पर हुमाजा के जी आके सॉरी. लुमाजा तो पढ़ा ही नहीं। ओके सॉरी. 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 वहां पर तो हमने वो करना था, अपना वही. रूल अप्लाई करना था। ओके ओके ओके. सॉरी. वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा. और एक आयत पढ़ें, बस सिर्फ एक आयत पढ़ें, ठीक है, सिर्फ एक आयत। ओके ओके. उससे ये होगा कि सबकी तो बारी आ इसका वो जाएगी। भी करना है, नहीं, इसकी वो भी करनी है. एनालाइज नहीं करना, जो बस मैं पूछूंगी बस आपने वो बताना ओके. है। ठीक है, जो मैं जी ठीक आपसे है. पूछूं आपने वो बताना है, ठीक है। क्योंकि आज ही ओके हमने ओके. इदगाम किया है, तो यहाँ पर जी इदगाम का एक दो जगह पर रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कर लेते हैं। जी जी. जी ठीक है. मैं ज़रा इसकी हरकत लगाऊं ताकि आसानी हो। ठीक है, ये हमारी पहली आयत है। अच्छा जी, अब आपको ये तनवीन में एक लाम नजर आया, साकिन, सॉरी, वईलुन, ये मैं मुशद्दद लिखने लगी थी। वईलुन, समझें, ये ऐसे लिखा हुआ है, वईलुन। इसी तरह से लिखा हुआ है हुमाजातिन, हुमाजातिन। ठीक है। अब ये जो तनवीन का नून है,
ہم نے آج ہی پڑھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کچھ آ جائے. یرملون میں سے آیا لفظ کوئی؟ جی کون لام سا ہے؟ لام آئی ہے. لام آ گیا، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو جی یرملون میں سے ہم نے پہلے یومین علیحدہ کیا تھا. ٹھیک ہے، جی لام اور را. پھر ہم نے کہا تھا یہاں پر یہ ادغام ہوگا بغیر غنہ کے. ٹھیک ہے، جی بالکل. یومن میں ہم نے پھر دو حصے کر لیے تھے. ہم نے نون اور میم، واو اور یا بنا لیے تھے. تو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ کون سا رول ہوا؟ بغیر ہونا والا. بغیر غنہ کے. پورا پورا مرج کرنا ہے بغیر غنہ کے. ہم کہیں گے ادغام بغیر غنہ، یا ہم کہیں گے ادغام کامل بغیر غنہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اور اسی طرح سے دوبارہ پھر وہی رول اپلائی ہو گیا. ٹھیک ہے، جی یہاں پر بھی تنوین کے بعد لام تھا. ٹھیک ہے، یرملون میں سے لام آ گیا، تو یہ ہمارا بغیر غنہ کے ہو گیا. ایکسیلنٹ، الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. اس طرح ہمیں یہ چیزیں یاد ہونا شروع ہوتی ہیں. جی اب آگے اگلی سسٹر آ جائیں. ایک ایک آیت پڑھیں. ٹھیک ہے، اب اللہ جی سے شروع کریں، جو سسٹر بھی پڑھنے لگی ہیں. الذي جمع مالا وعدده. اچھا جی، الحمدللہ. اچھا جی، آپ کے پاس آ گیا مالوں. جی میڈم، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یومن میں سے واو آ گیا ہے. واو آ گیا. ٹھیک ہے، یومن میں سے واو آ گیا، اور یومن کے ہم نے دوبارہ پھر دو حصے بنائے تھے نا. جی میڈم، نون میم اور یا واو واو یا ٹھیک ہے، یہ کون سا تھا؟ کامل یہ نام ناقص. ناقص. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارا تنوین کے بعد واو آنے کی وجہ سے کون سا ادغام ہوگا؟ ادغام میں ناقص، جسے آپ نے بہت اچھا سا ادا کیا. ما لوں لوں، کیونکہ واو ہے تو راؤنڈنگ کا ضرور بال ضرور خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو نہیں کہیں آپ نے اسکپ کر دینا. الحمدللہ، ایکسیلنٹ ہو گیا. جی اب ایک اور سسٹر آئے، یہ سب اس شروع کریں. يحسب أن ماله أخلده. الحمدللہ. اچھا جی، یہاں پر انا آ گیا، وہ ہم نے ابھی صورت میں بھی کیا کہ نون کے بعد نون ہے، تو یہاں پر ہمارا ٹو کاؤنٹ کا نون غنہ شدت ہو کا گیا. غنہ ہوا. انا. اس کے بعد ہے مالہ، مالہ، مالہ. اور اس کے بعد آپ کو ایک واو صغیرہ کے اوپر بڑی سی مد نظر آ رہی ہوگی. اس کے بعد ہے اخلدہ. ابھی ہم نے چونکہ مد منفصل. مد منفصل نہیں، اس کا ہم نام تھوڑا سا بدلیں گے. ہم کہیں گے یہ ہے مد سلا کبرا. ہم نے یہ پوری پوری سیکھ بھی لینی کہ کیسے بنتی ہے. ٹھیک ہے، اس مد کا الگ سے نام ہے. جیسے آج ہم نے ایک چھوٹا سا نام نیا سیکھا نا، مد بدل. یہ اپنے پوری ڈیٹیل بھی کرنی ہے. بس اپنے پاس قرآن پاک میں چھوٹا چھوٹا لکھ لیا کریں کہ یہ مد سلا کبرا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا جی، اب اگلی سسٹر آئے، اگلی آیت پڑھیے گا، آیت نمبر 4. كلا لينبذن في الحطمة. الحمدللہ. اچھا جی، یہاں پر جو تھا یم بزن، یہ جو نون ساکن کے بعد با آیا، یہ ابھی ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس ٹو کاؤنٹ کر لیے. نون مشدد کے، اقلاب ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، آپ کو نام آتے ہیں، الحمدللہ. اب ہم کس طرح سے سیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو کبھی زندگی میں نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے، اچھا جی. الحمدللہ سسٹر، آپ نے بہت اچھا پڑھا. اگلی آیت بھی پڑھ لیں، وہ اسی کی ہے، جو اگلا سوال ہے اسی کا ہی ہے. وما أدراك ما الحطمة. ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی. کیا ہو گئی؟ آپ نے کہا حطمة وما. ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں. وما، آپ نے یہاں پر پورے پورے بنا دیے 4 to 5 کاؤنٹ، اور یہ ادرا نہیں تھا، ادرا تھا. ادرا کا. جی ٹھیک ہے، وہ الف جی صغیرہ دیتے ہیں نا، وہ جی 2 کاؤنٹ اس کو کرنے. ہم نے اس کو پڑھیں ذرا دوبارہ، وما سے. وما أدراك نہیں، روکا نہیں، وما راک. یہاں 2 أدراك کاؤنٹ ہے. وما جی جی
जी ये मैम। जो रॉ के साथ फतहा के साथ अलिफ नजर आ रहा है ना, तो इसको रॉ अलिफ जी रा जी बनाएं। दोबारा ठीक पढ़े, है। अदराका को व दोबारा पढ़े। जी वमा अदराका मल हुतमा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब पता है क्या हुआ है, अगर आपको ये सूरत जुबानी याद है ना, तो आपने एक गलती याद की भी है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कैसे सही जी करना है, इसको आपने बार बार रिपीट करना है। कैसे? वमा अदराका मल हुतमा। ठीक है, ये जो तो को पुर पढ़ना है, हा को साकिन करना है, इसको बदल देना है हमने हा में। इसके बाद अगली एक सिस्टर पढ़े, अगली जो आयत है। और अगर अभी कोई और नहीं पढ़ना चाह रहा, तो जो पहले पढ़ चुके हैं बेशक वही रिपीट रिपीट कर लें इसको। नारुल्लाहिल मुक़द्दा। अल्हम्दुलिल्लाह। रॉ को आपने पुर पढ़ा। और दोबारा पढ़े जरा, अस्मुज लाला को कैसे पढ़ा था आपने? नारुल्लाहिल मुक़द्दा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब कोई एक सिस्टर और आए और इसको जज़ाकल्लाह मैम। कंप्लीट कर लें। التي تطلع على الأفئدة आगे भी पढ़ें। إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة अल्हम्दुलिल्लाह। अब है हमारे पास पी आमदिन, आमदिन मुमद्ददा। चलें जी, अब मुझे बताएं जो हमने आज पढ़ा उसमें से यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? यहाँ पर हमारा عامل इदगाम بغنة कामिल अच्छा जी, ये हमारे ये जो अहमदिम आठवां पर इदगाम कामिल हो रहा है। इदगाम, بغنة बागुन्ना। ठीक है, बगैर गुन्ना नहीं, बागुन्ना। ठीक है, सही बोला है आपने, बागुन्ना। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि हमारे पास तनवीन के बाद मीम आ गया था, जो हमारे यौमिन में था और कामिल में था। ठीक है, ये इतना इतना सा आप साथ साथ लिखते जाएंगे ना, इदगाम में कामिल बागुन्ना, इदगाम में कामिल बगैर गुन्ना, इदगाम में नाकिस बागुन्ना। तो ये इंशाल्लाह जो ये जो इदगाम वाला चैप्टर है ना, ये बहुत अच्छा सा आपको समझ आ जाएगा। याद हो जाते हैं, हम थ्योरी याद कर लेते हैं, सारी किताबों की किताबें चाट लेते हैं, लेकिन जब तक अप्लाई करते हुए याद नहीं आते ना ये रूल, तब तक इनका फ़ायदा नहीं होता। तो इंशाल्लाह मैं आज के क्लास या लेसन के बाद ये उम्मीद, ये यकीन करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये जो रूल है आपको अच्छे से याद हो जाए। आपका होमवर्क क्या है, आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, ये आप सब अपना होमवर्क लिख लें। आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है, जिसमें आपने क्या करना है, सबसे ऊपर आप लिखेंगे नून साकिन और तनवीन के अहकाम। ठीक है, और ये टॉपिक हमारा होगा अल इदगाम। अब आपने यहाँ पर इसको चार कैटेगरीज में लिखना है। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे इजहार, फिर लिखें इदगाम, फिर लिखेंगे इक़लाब, इसके बाद आप लिखेंगे इख्फा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना, अच्छा आपने ना अपनी जिस भी कॉपी वगैरह पे लिखते हैं बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आपने ऐसे बना लेना है। अगर यहाँ पर मैंने तो और कुछ लिखा हुआ है ना, आपने क्या करना है, इस तरह बनाना है। सबसे ऊपर आप लिख लें इसका जो टाइटल लिख लें, उसके बाद फिर, ताकि ये जब नीचे आप लिखते जाए ना, ऐसे करेंगे तो आपका फ्लो चार्ट छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हॉरिजॉन्टल में ला के आप इसका आपने ना साथ छोटे छोटे थोड़े थोड़े लफ्ज भी लिख लेने हैं। इजहार के थोड़े से लफ्ज लिख लीजिएगा, इदगाम के लिख लीजिएगा। उसका फायदा ये हो जाएगा
کہ آپ کو یہ جب دوبارہ دوبارہ سے اپنا لکھا ہوا دیکھیں گے تو مزید یاد آئے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ اور کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنے پین جو کلر وغیرہ وہ لے لیں، کوئی مارکر کلر لے لیں یا پوائنٹر لے لیں رنگ برنگے سے۔ اب اظہار کے ساتھ آپ جیسے لکھ لیں کہ یہاں پر حروف ہلکی، ٹھیک ہے، حروف ہلکی، اس کے آپ دو چار مثالیں لکھ لیں، فائدہ ہو جائے گا کہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی آیا تھا، دو تین لفظ لکھ لیں اس کے ساتھ۔ اب ادغام کا تھوڑا سا نیچے ذرا لمبا چلا جاتا ہے نا چارٹ، تو اب آپ کیا کریں گے، ادغام کے ساتھ آپ لکھ لیں، ایک آ جائے گا غنہ کی با غنہ لکھ لیں دے غنہ کے ساتھ کی بجائے، اور ایک لکھ لیں بغیر غنہ، ہوگا یہ کامل ہی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آ جائے گا، اب اگر پہلے صرف آپ کامل کا لکھتے ہیں نا، اس میں صرف آپ نے لکھنا ہے نون میم اور ادھر لام اور را، ٹھیک ہے، یہ کامل ہے۔ یہاں پر ایک اور پھر بن جاتا ہے، وہ ہے ادغام ناقص، اور اس میں اب ہمارے پاس کون کون سے لفظ بچتے ہیں، حرف بچتے ہیں، واؤ اور یا۔ اب آپ نے یہاں پر کچھ تھوڑی سی مثالیں لکھ لینی ہیں، کچھ تھوڑی سی مثالیں لام اور را کی لکھ لینی ہیں، اس کے بعد ادغام ناقص کے آپ نے دو چار لفظ لکھ لینے ہیں، یہ ہمارا پورا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ابھی میرے پاس تو یہ اور بہت کچھ لکھا ہوا ہے نا، آپ نے کوشش کیا کرنی ہے کہ آپ کا یہ اقلاب اور اخوا والا بچ جائے، ٹھیک ہے، یہ اس میں نہ کچھ آئے، یہ سارا آپ نے ایک سائڈ پہ اس کو ادغام والا پورا بنا لینا، فلو چارٹ جو بنانا ہے۔ اچھا جی، یہ جب چارٹ آپ کا بن جائے گا، اس کے بعد کیا کرنا ہے، جو آج پڑھا ہے ہم نے، جیسے آج ہم نے ادغام کا چیپٹر پڑھا ہے اور ہم حروف ہلکی والا اظہار پڑھ چکے ہیں، اب جتنے پیجز آپ پڑھیں گے قرآن مجید کے پورے اس ویک میں، آپ کو جہاں جہاں نون ساکن اور تنوین نظر آئے، فوراً الرٹ ہونا ہے کہ اظہار یا ادغام ہو رہا ہے، تو اپنے اس یہ جو فلو چارٹ آپ بنائیں گے اس کو سامنے رکھیں کہ اس میں سے یہ کہاں پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے اقلاب اور اخفا کی طرف نہیں جانا، سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے نا تو گریں گے نہیں، ایک دم سے چھلانگے لگائیں گے تو پھر یہ کہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ سسٹر اتھیا، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ اچھا جی، سسٹر یہ جی، جو گناہ ہے ان کو یہ ادغام ناقص کہتے ہیں، اور جو بغیر گناہ ان کو یہ کامل کہتے ہیں۔ ناقص میں صرف آپ واو اور یا کو یاد رکھ لیں، ہے یہ جو ہے نا، اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، یہ جو نون اور میم ہے نا، نون اور میم، اس میں جی، کامل ادغام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کامل ادغام، اچھا، اور ہو جاتا ہے باغنہ، ٹھیک ہے، جبکہ یہ بھی باغ کامل ہے، ٹھیک ہے، لام اور را میں بھی کامل ہے، لیکن یہ ہے بغیر غنہ کے، ٹھیک ہے۔ اب ایک کامل کے جو متضاد ہیں، جس کو ہم اس کہتے ہیں الٹ کہتے ہیں، صبح شام دن رات، تو کامل کا جو الٹ آ جاتا ہے ناقص آ جاتا ہے، ناقص میں ہم نے صرف یاد رکھنا ہے کہ یہ واو اور یا ہے، اور اس کو اس طرف اچھا، ریلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، یومن میں، یعنی کہ یہاں پر با غنہ ہے، بغیر ٹھیک، غنہ کا کوئی بھی ناقص نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بغیر غنہ میں صرف لام اور را ہے، با غنہ میں واو اور یا ناقص ہے۔ یہ جو جتنی بھی تھیری ہوتی ہے نا، یہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں، جیسے آپ قرآن مجید کا کوئی سا پیج کھول لیں، اس کے اوپر دیکھیں پڑھیں، پھر آپ کو انشاءاللہ یہ بہت اچھا سا یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اچھا، چلیں جی، اب جی، مجھے بھی اجازت تھینک یو۔ دیجیے، ہم نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ بھی لے لیا، اور اس کو ہم نے آج کر کے بھول نہیں جانا، جب تک یہ آپ کا پکا نہیں ہو جائے گا نا ادغام کا چیپٹر، یہ جو نون ساکن اور تنوین کے احکام، تب ریکارڈنگ تک ہم بھیج اس کو دیجیے گا کنٹینیو جلدی سے۔ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ وبرکاتہ، استاذہ جی۔ وعلیکم السلام۔